ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ PSCB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗੀ? ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਟੈਟੂਟਰੀ SLR ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। SLR ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ SLR। ਮੋਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ SLR, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 18%। India's GDP is estimated to what percent in 2021? 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਜੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਓਵਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ? NSO ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। IMF ਦੁਆਰਾ 1.9%, 2.0% ਇਕਰਾ ਦੁਆਰਾ, क्रिसिल द्वारा 3.5%, मूडीज द्वारा 2.5%, ADBs द्वारा 4.0% और वर्ल्ड बैंक द्वारा 1.5 तो लेकर 2.8% कहा गया कि GDP रहेगी। ठीक है जी। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने मुरैना मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने इन्हों द्वारा ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਊਲ ਹਮਸਫਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਊਲ ਹਮਸਫਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡੀਜ਼ਲ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੋਟਲਸ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮਸਫਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮਸਫਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ CBSE। ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਔਰ CBSE ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਫਸਟ ਐਵਰ ਲਾਈਵ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਔਰ CBSE। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ CBSE ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਇਟਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਬੈਂਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਫॉर ਅਨਦਰ 5 years। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੈਂਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਿਸ ਦੇ? JBL ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਲਿਵ ਇਟ ਰੀਅਲ ਲਿਵ ਇਟ ਰੋ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਿਵ ਇਟ ਰੀਅਲ लिव इट रो। देखो अपना देश एक वैबीनार सीरीज शुरू की गई है। देखो अपना देश टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा इसमें शुरू किया गया
टूरिज्म मिनिस्टर ने अपने प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर मिनिस्टर ने और टूरिज्म मिनिस्टर ने, कल्चर मिनिस्टर ने और टूरिज्म मिनिस्टर ने। दामो मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने इन्होंने द्वारा देखो अपना देश वैबीनार सीरीज शुरू की गई है, जिसका फर्स्ट बेस सी दिल्ली के उत्ते और सैकेंड सीरीज इस बेस सी कोलकाता उत्ते। नैक्सट है मणिपुर हैज़ लॉन्च फर्स्ट फूड बैंक इनिशिएटिव। फूड बैंक किहड़ी स्टेट द्वारा शुरू किया गया? मणिपुर द्वारा। फूड बैंक मणिपुर द्वारा। थीम रही सी हैल्प एंड हंगर टूडे। हैल्प एंड हंगर टूडे इसकी थीम रही सी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक। ओपेक की अगर आप गल करिए फुल फॉर्म बनती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अलॉन्ग विद रशिया। अगर ओपेक प्लस की गल करिए तो रशिया उसका पार्ट बनता है। इन्होंने मिलकर की डिसाइड किया कि रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण क्रूड ऑयल का यूसेज है जोड़ा काफ़ी ज़्यादा घट गया, इसलिए प्रोडक्शन को घटाने की गल की गई है। इस थोड़ी बहस चल रही थी कि असी बेसिकली रशिया द्वारा कहा गया कि उसको नहीं करेगा, पर फाइनली हुणे यह डिसाइड किया गया कि प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाएगा। सिर्फ सिवाए मैक्सीको द्वारा इस दे स्टेटमेंट नहीं आई है। बाकी कंट्रीज ओपेक दियाँ प्लस रशिया इन्होंने मिलकर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को रिड्यूस करना शुरू कर दिता। हैडकुआटर याद रखना ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया के ओपेक का हैडकुआटर है। USA अनाउंसड टू फ्रीज फंड ऑफ WHO जो फंड दिता जाता है USA द्वारा अनाउंस किया गया कि वह उसनों बंद कर देगा। सब तो ज़्यादा फंडिंग WHO को USA द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। WHO को सब तो ज़्यादा फंडिंग USA द्वारा प्रोवाइड की जाती है और USA ने कहा कि यह इस फंडिंग को बंद कर देगा। 7 अप्रैल 1948 में USA बनाया गया सी, WHO बनाया गया सी जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच इस दा हैडकुआटर है और टेड्रोस एडानोम इस दे हैड ने। कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर एक कॉमेडियन सीगे जिन्हां दी कोरोना वायरस करके डेथ हो गई है। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं UK तो। कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर UK तो बिलोंग करते हैं और इन्हां दी कोरोना वायरस कारण डेथ हो गई है। नैक्सट है वर्ल्ड आर्ट डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये याद रखना। नैक्सट है अज की स्टेट अपनी नागालैंड के बारे आप डिस्कस करेंगे। सब तो पहले नागालैंड बनाया गया सी 1963 के 1 दिसंबर 1963। नागालैंड कैपिटल कोहिमा है और लार्जेस्ट सिटी दीमापुर है। कैपिटल कोहिमा है और लार्जेस्ट सिटी दीमापुर है। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू ने नागालैंड के नेफ्यू रियो। गवर्नर RN रवि गवर्नर ने और नेफ्यू रियो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने। 12 डिस्ट्रिक्ट्स ने, एक लोक सभा सीट है, एक राज्य सभा सीट है और विधानसभा यूनिकैमरल है। विधानसभा की सीट्स थे 60 विधानसभा की सीट्स थे। बॉर्डर स्टेट्स की गल करिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और बॉर्डर कंट्री की गल करिए म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम के नाल बॉर्डर शेयर करता है। इस दे नाल कंट्री की गल करिए म्यांमार के नाल भी बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड। ऑफिशियल लैंग्वेज की गल करिए इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्टेट एनिमल मिथुन, स्टेट बर्ड ट्रैगोपैन। स्टेट एनिमल मिथुन, स्टेट बर्ड ट्रैगोपैन। स्टेट फ्लावर की गल करिए रोहेंड्रोन स्टेट फ्लावर है। एल्डर ट्री स्टेट ट्री है। हॉर्नबिल फैसटिवल सैलीब्रेट किया जाता है नागालैंड के विच। हॉर्नबिल फैसटिवल नागालैंड के विच सैलीब्रेट किया जाता है। इस दे नाल इस साल इसनूं त्रिपुरा के विच भी सैलीब्रेट किया गया सी। इंपोर्टेंट फेमस नैशनल पार्क है इंतंकी नैशनल पार्क नागालैंड के विच है। फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोली बैज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुली बैज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी नागालैंड के विच ने। ठीक है जी। नागा ट्राइब भी काफ़ी फेमस है, इतने की याद रखनी है। नागा ट्राइब ऑफ नागालैंड। नैक्सट है
फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं, विच कंट्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी रोसनोबोट एक्सपर्ट हैज कमिटेड 2 मिलियन यानी कि 15.3 करोड़ रुपीज टू पीएम केयर्स फंड, $2 मिलियन या कह सकते हैं 15.3 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड ਨੂੰ डोनेट करेगी रोसनोबोट एक्सपोर्ट, एक कंपनी है। ठीक है, ये किहड़े देश की कंपनी है? यह है रशिया की। किहड़े देश की कंपनी है ये रशिया की एक कंपनी है जिहड़ी कि प्रोवाइड करेगी $2 मिलियन पीएम केयर्स फंड दे विच। ठीक है जी, ये याद रखना। अच्छा, रशिया के नाल अगर इंडिया की एक्सरसाइज की गल करिए, रशिया के नाल इंडिया की एक्सरसाइज है इंदिरा, इस तो इलावा एविया इंदिरा और एविया इंदिरा, दो इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ने इंडिया की रशिया के नाल, इंदिरा और एविया इंदिरा। फ्रांस के नाल इंडिया की एक्सरसाइज शक्ति वरुण गरुड़, तीन एक्सरसाइज ने शक्ति वरुण गरुड़, तीन एक्सरसाइज इंडिया की फ्रांस के नाल। इटली की गल करिए, इटली की कैपिटल रोम है और इत्थे हैडक्वार्टर है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हैडक्वार्टर कित्थे है? इटली दे विच है। कैनेडा कैपिटल ओटावा और कैनेडा की एक सिटी है मॉन्ट्रियल सिटी है जिथे हैडक्वार्टर है वाडा का हैडक्वार्टर कित्थे है? कैनेडा दे विच, मॉन्ट्रियल कैनेडा दे विच। और वाडा द्वारा रशिया नूं 4 साल के लिए बैन किया गया सी, जिस दे कारण रशिया किस दे विच पार्टिसिपेट नहीं करेगा? टोक्यो ओलंपिक्स दे विच। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ रशिया। पैरा ओलंपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ, एशियन गेम्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? रशिया। अच्छा, अगर वेट लिफ्टिंग फैडरेशन की गल करिए, इंटरनैशनल वेट लिफ्टिंग फैडरेशन की गल करिए, इन्हों द्वारा दो कंट्रीज़ के वेट लिफ्टर्स नूं बैन किया गया और दो कंट्रीज़ का नाम दसना है। दो कंट्रीज़ के वेट लिफ्टर्स नूं बैन किया गया और दो कंट्रीज़ का नाम दसना है। चाइना की गल करिए, चाइना के बारे ओलंपिक्स आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। 2022 बीजिंग ओलंपिक्स हैल्ड किए जाएंगे। इस तो इलावा चाइना बारे अगर हैडक्वार्टर्स की गल करिए, 3 इंपोर्टेंट हैडक्वार्टर्स ने चाइना विच। AIIB का हैडक्वार्टर, NDB का हैडक्वार्टर, SCO का हैडक्वार्टर। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बीजिंग चाइना दे विच हैडक्वार्टर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का हैडक्वार्टर है शंघाई दे विच। शंघाई चाइना दे विच हैडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हैडक्वार्टर है बीजिंग चाइना दे विच। इंपोर्टेंट है याद रखना है, वैसे तो इसका नाम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पर इसका हैडक्वार्टर बीजिंग चाइना दे विच है। नेक्स्ट है, बाय whom has increased the size of COVID-19 response package to 20 billion। एक बैंक द्वारा बेसिकली अगर आप गल करिए, एक बैंक द्वारा COVID-19 रिस्पोंस पैकेज दिता जाना सी अराउंड 5 तो लैके 6 बिलियन तक का। ठीक है, और उसने अनाउंस किया कि वह उस पैकेज नूं इंक्रीज़ कर रहा है, कितना इंक्रीज़ कर रहा है? 20 बिलियन तक, कि हुण वह 20 बिलियन प्रोवाइड करेगा। 20 बिलियन प्रोवाइड करेगा। वो किहड़ा बैंक है? इंपोर्टेंट है याद रखना है, ADB। अपना करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन ADB प्रोवाइड करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 20 बिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हैडक्वार्टर कित्थे है? मेट्रो मनीला फिलीपींस के हैडक्वार्टर है। 68 मैंबर कंट्रीज़ ने, 68 कंट्री का नाम रखना याद रखना है न्यू 68th कंट्री है जी इसकी मैंबर बनी सी। हैडक्वार्टर याद रखना है मेट्रो मनीला फिलीपींस और हैड कौन ने? हैड ने इसके मसत्सुगु आसाकावा इसके हैड ने, रिसेंटली अपॉइंटेड ने, याद रखने ने। बाकी ऑप्शंस दे विच AIIB हुणे गल करी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे, इसका हैडक्वार्टर बीजिंग चाइना दे विच है और इसके हैड कौन ने? इसके हैड ने नहीं सॉरी शंघाई चाइना दे विच है। इसका हैडक्वार्टर शंघाई चाइना दे विच है और इसके हैड कौन ने? इसके थोड़ी कन्फ्यूजन है, नहीं बीजिंग चाइना दे विच है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हैडक्वार्टर बीजिंग चाइना दे विच है। NDB का हैडक्वार्टर शंघाई चाइना दे विच है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसके हैड कौन ने? जिम लिक्विन इसके हैड ने,
वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर वाशिंगटन डीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 189 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ IMF ਸੇਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ 189 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਜੋਰਜੀਵਾ ECB ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਲਗਾਰਡੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ IMF ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਜੋਰਜੀਵਾ और क्रिस्टीना लगार्डे। नेक्स्ट है विच स्टेट हॉस्पिटल्स किहड़ी स्टेट के हॉस्पिटल द्वारा डिप्लॉय किए गए कोबोट रोबोटिक्स डिप्लॉय किए गए टू सर्व फूड मैडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स नूं फूड और मैडिसिन प्रोवाइड करवाने के लिए उन्होंने रोबोट्स का यूज़ करना प्रॉपरली शुरू कर दिता है। कोबोट रोबोटिक्स कहा जाता है उन्होंने किहड़े स्टेट के हॉस्पिटल्स द्वारा झारखंड के हॉस्पिटल्स द्वारा झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने और इत्थे दे हॉस्पिटल्स द्वारा शुरू किए गए हैं कोबोट रोबोटिक्स याद रखने ने। अच्छा छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ने भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर ने। झारखंड के गवर्नर ने द्रौपदी मुर्मू। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ने। असम के चीफ मिनिस्टर जगदीश सरबानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर ने। सिक्किम चीफ मिनिस्टर ने PS तमांग चीफ मिनिस्टर ने सिक्किम दे। ठीक है जी। हुण कमेंट बॉक्स में तुसीं दसने ने इत्थे दे गवर्नर्स 5 स्टेट्स के गवर्नर दसने ने कमेंट बॉक्स के। ठीक है जी। नेक्स्ट है टूर डे फ्रांस हैज़ बीन पोस्टपोन्ड to August-September 2020 due to COVID-19. It is related to which sports? Basically Tour de France एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। ये किस चीज़ का टूर्नामेंट है? यह है साइकिलिंग का। फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा साइकिलिंग का टूर्नामेंट है टूर डे फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट है कि इसनूं अप्रैल दे विच हैल्ड किया जाना सी। हुण इसनूं पोस्टपोन किया गया अगस्त सप्टैंबर दे विच। हुण यह अगस्त सप्टैंबर दे विच हैल्ड किया जाएगा। बेसिकली पेरिस फ्रांस दे विच इसनूं हैल्ड किया जाता है और यह एक साइकिलिंग टूरनामेंट है जिस दे विच काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करने होंदे ने साइकिलिंग के उत्ते। ठीक है, काफ़ी दिन का लंबा प्रोग्राम होंदा है और साइकिलिंग का इवेंट है टूर दे फ्रांस। याद रखना है। हॉकी बारे याद रखना है। मैनस हॉकी वर्ल्ड कप आप डिस्कस किया कित्थे हैल्ड किया जाएगा? इंडिया दे विच हैल्ड किया जाएगा 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ हैल्ड किया जाएगा। 2022 वूमेंस हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन और नीदरलैंड 2 कंट्रीज़ मिलकर होस्ट करनगियां। टैनिस के टूरनामेंट्स बारे आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विबिल्डन ओपन और US ओपन 4 इंपोर्टेंट टूरनामेंट्स होंगे ने टैनिस के। इस तो इलावा टैनिस का एक रोजर्स कप है जिसनों रिसेंटली पोस्टपोन किया गया। कोविड-19 कारण। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ओपन हैल्ड हो चुका है। फ्रेंच ओपन में पोस्टपोन किया गया कोविड-19 के लिए और विबिल्डन ओपन पहली बार वर्ल्ड वार 2 तो बाद विबिल्डन ओपन में फर्स्ट टाइम कैंसल किया गया। याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर खेलिया जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेलिया जाता है, विबिल्डन ग्रास पर खेलिया जाता है और US ओपन हार्ड कोर्ट पर खेलिया जाता है। ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 44th session of World Heritage Committee of UNESCO which is now postponed। बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आप डिस्कस किए हैं इंपोर्टेंट जी चीज़ा सी जिसनों पोस्टपोन किया गया। ठीक है, सब तो पहले टूर दे फ्रांस और दूजी है यूनेस्को की मीटिंग। यूनेस्को का 44th सैशन हैल्ड किया जाना सी। कित्थे हैल्ड किया जाना सी? इसनों हैल्ड किया जाना सी फूजहू सिटी है चाइना की सिटी है फूजहू सिटी चाइना दे विच हैल्ड किया जाना सी 44th सैशन यूनेस्को का 44th सैशन कित्थे हैल्ड किया जाना सी? चाइना दे विच, फूजहू चाइना दे विच। ठीक है जी, याद रखना है। और इसनूं पोस्टपोन किया गया। वुहान की अगर आप गल करिए वुहान
ਵੁਹਾਨ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੁਹਾਨ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਚਾਈਨਾ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਜ਼ਰਬੇਜਾਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਬਾਕੂ। ਇੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 43rd ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈंने इस तरीके ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਡਰੇ ਓਜ਼ਲੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਔਡਰੇ ਓਜ਼ਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which mobile application recently launched become the world fastest application to reach 50 million download। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिर्फ 13 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਹੋਏ ਨੇ। 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਸਟ 13 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਕਸ਼ਾ ਸਰਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸਰਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਰਾਜਕੋਪ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਕੋਪ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 155214। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਮਸਤੇ ਓਵਰ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਚੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਚੇਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਸੈਂਟਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which day is observed as world voice day ਕਿਸ ਦਿਨ observe ਕੀਤਾ ਗਿਆ? world voice day observe ਕੀਤਾ ਗਿਆ 16th ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ observe ਕੀਤਾ ਗਿਆ world voice day observe ਕੀਤਾ ਗਿਆ 16th ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ focus on your voice ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ। 15th ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਆਰਟ ਡੇ ਕਦੋਂ observe ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 15th ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। 10th ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਰਲਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡੇ ਕਦੋਂ observe ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 10th ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। 10th ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਰਲਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡੇ। 11th ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਫ ਮਦਰਹੁੱਡ ਡੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਚੱਲੇ ਕਰੋ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਫ ਮਦਰਹੁੱਡ ਡੇ 11th ਅਪ੍ਰੈਲ। 12th ਅਪ੍ਰੈਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ 12th ਅਪ੍ਰੈਲ। ਯੂਰੀ ਗਾਰਜੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯੂਰੀ ਗਾਰਜੀਅਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 12th ਅਪ੍ਰੈਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ। ਨੇਮ ਦਾ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸਾਇੰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ name the multilingual science communication initiative launched by government of Indian government द्वारा शुरू किया गया एक multilingual science communication initiative इसका की नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया फोर्थ ऑप्शन कोविड ज्ञान इसका नाम रखा गया एक साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव है जिहड़ा लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिस दे विच कोविड दे रिगार्डिंग जिन्नी भी इंपोर्टेंट चीज़ां होणगियां इस दे विच दस्सियां जाणगियां और जिन्नियां भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होणगियां यानी कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन होणगियां उन्हां दे बारे भी इस दे विच दस्सिया जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग ने। कोविड
ज्ञान, कोविड ज्ञान इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड कियोस्क कोवासैक फॉर कोविड-19 आएगा थे कोविड-19 सैंपल कलैक्शंस। कोवासैक नाम का एक कियोस्क यानी कि एक अलमारी के तरीके नाल एक कोवासैक जिसनों डेवलप किया गया किस दे द्वारा किया गया, किस दे लई सैंपल कलैक्शंस दे लई, सैंपल कलैक्शंस दे लई किया गया, किस दे द्वारा इसनों किया गया, DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO द्वारा इसनों स्टार्ट किया गया या कह सकते हैं डेवलप किया गया। ठीक है। जी सतीश रेड्डी इस चेयरमैन ने 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका हैडकुआटर कितने है? करनाटका बेंगलुरु ਦੇ ਵਿੱਚ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ और इसके चेयरमैन ने के सिवान इस चेयरमैन ने। अच्छा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ होर डिस्कस करते हैं IIT गुवाहाटी रिगार्डिंग। IIT गुवाहाटी द्वारा एक स्प्रे बेस्ड कोटिंग बनाई गई है, स्प्रे बेस्ड कोटिंग बनाई गई है, डेवलप की गई है किस दे लई? PPE लई। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्कस किया ਸੀ चाइना द्वारा PPE प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। किन्ने? 1.70 लाख PPE कौन प्रोवाइड करवा रहा है? चाइना। PPE की फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन प्रोवाइड करवा रहा है? चाइना। और एक स्प्रे बेस्ड कोटिंग किन्ना द्वारा डेवलप की गई है? PPE के लिए डेवलप की गई है IIT गुवाहाटी द्वारा। किस दे लिए? हैल्थ वर्कर्स नूं यह प्रोवाइड करवाई जाएगी। IIT गांधीनगर द्वारा रिसेंटली प्रोजेक्ट आईसैक शुरू किया गया सी। IIT गांधीनगर द्वारा रिसेंटली शुरू किया गया सी प्रोजेक्ट आईसैक IIT गांधीनगर द्वारा। किस दे लिए? टू एंगेज स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव वर्क्स। IIT रुड़की द्वारा दो चीज़ें शुरू की गई। एक तो बनाया गया 3D मास्क बनाए गए। एक एम्स ऋषिकेश के नाल मिलके की बनाए गए सी? प्राण वायु वेंटीलेटर्स बनाए गए सी एम्स ऋषिकेश के नाल मिलके वेंटीलेटर्स बनाए गए IIT रुड़की द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, केड़े नेशनल पार्क ने सैटअप किया क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ फॉर एनीमल्स। एक नेशनल पार्क द्वारा एनीमल्स के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी नूं इंस्टॉल किया गया। किहड़े नेशनल पार्क द्वारा इसनूं किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द्वारा। थर्ड ऑप्शन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द्वारा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कित्थे है? उत्तराखंड दे विच है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसने फर्स्ट नेशनल पार्क बने इंडिया का जिसने क्वारंटाइन फैसिलिटी नूं शुरू किया एनीमल्स के लिए। ठीक है। इस तो इलावा इंपॉर्टेंट याद रखना जिम कॉर्बेट ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और इसनूं बनाया गया सी 1936 दे विच। 1936 दे विच बनाया गया सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा उत्तराखंड के होर नैशनल पार्क्स की गल करिए। उत्तराखंड के होर किहड़े नैशनल पार्क्स ने? जिम कॉर्बेट तो इलावा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, गंगोत्री नैशनल पार्क, नंदा देवी नैशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नैशनल पार्क और गोविंद नैशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स। बाकी नैशनल पार्क्स की गल करिए। काना नैशनल पार्क है MP दे विच सब तो ज़्यादा नैशनल पार्क्स ने और काना नैशनल पार्क उन्होंने विचों एक है। होर नैशनल पार्क्स की गल करिए MP दे नैशनल पार्क्स किस तरीके याद रखने को मैंने एक लाइन वाइज बांधवगढ़, काना, माधवपन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा। बांधवगढ़, काना, माधवपन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार। ये सारे नैशनल पार्क्स कितने ने? MP दे विच। दुधवा नैशनल पार्क इकलौता नैशनल पार्क है यूपी का इकलौता नैशनल पार्क है दुधवा नैशनल पार्क कितने है? यूपी दे विच। पापीकोंडा नैशनल पार्क है आंध्र प्रदेश दे विच पापीकोंडा नैशनल पार्क है। इस तो इलावा आंध्र प्रदेश दे विच नैशनल पार्क है एक होर नैशनल पार्क है इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश दे विच पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वरा। पापीकोंडा नैशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नैशनल पार्क कितने है? आंध्र प्रदेश दे विच।
बैटला नैशनल पार्क है झारखंड दे विच, झारखंड का इकलौता नैशनल पार्क है बैटला नैशनल पार्क। बैटला नैशनल पार्क कितने है? झारखंड दे विच। ठीक है जी, ये सारे याद रखने ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैस्कोट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैस्कोट ऑफ 4th एशियन पैरा गेम्स 2022 विच इज़ टू बी हैल्ड इन चाइना। चाइना के काफ़ी ज़्यादा फंक्शनस हैल्ड किए जाने ने रिसेंटली, किहड़े हैल्ड किए जाएंगे? एक तो 2022 ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स बीजिंग दे विच, दूजा 2022 दे विच ही की हैल्ड किया जाएगा? एशियन गेम्स, एशियन गेम्स भी हैल्ड किए जाएंगे। ठीक है, एक हैल्ड किया जाएगा एशियन यूथ गेम्स, एशियन यूथ गेम्स, एक हैल्ड किया जाएगा एशियन पैरा गेम्स। एशियन पैरा गेम्स हैल्ड किए जाएंगे जिसका मैस्कोट रिलीज किया गया फीफी बर्ड, फीफी बर्ड। सैकेंड ऑप्शन फीफी बर्ड मैस्कोट रिलीज किया गया किसका? एशियन पैरा गेम्स का। याद रखना एशियन पैरा गेम्स का। मिराई तोबा एंड सो माइटी, ये मैस्कोट्स ने, दो मैस्कोट्स ने किसदे? 2021 टोक्यो ओलंपिक्स दे। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 का मैस्कोट है मिराई टोवा और सो माइटी मैस्कोट है 2021 पैरा टोक्यो ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स टोक्यो के हैल्ड किए जाएंगे, सो माइटी मैस्कोट है। कोंगकोंग लियान लियान चैन चैन, कोंगकोंग लियान लियान चैन चैन, तिन्हों कहा जाता है स्मार्ट ट्रिपलैट्स, स्मार्ट ट्रिपलैट्स। आप हुणे गल की सी हैल्ड होणगे चाइना दे विच, चाइना दे विच की हैल्ड होणगे? 19th एशियन गेम्स, 19th एशियन गेम्स हैल्ड होणगे चाइना दे विच जिसका मैस्कोट है कोंगकोंग लियान लियान चैन चैन, तिन्हों कहा जाता है स्मार्ट ट्रिपलैट्स। स्मार्ट ट्रिपलैट्स एशियन गेम्स 2022 बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना दे विच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इलैक्ट्रिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक्स, इलैक्ट्रिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd 4th एंड 5th। किहड़ी स्टेट ने लॉन्च की इलैक्ट्रिक फॉर्मेट टैक्सट बुक्स का 3rd 4th और 5th क्लासिस के लिए? लॉकडाउन करके इसनूं किया गया, किहड़ी स्टेट द्वारा? मणिपुर द्वारा, मणिपुर द्वारा इसनूं किया गया। याद रखना किहड़ी स्टेट द्वारा किया गया? इसनूं किया गया मणिपुर द्वारा। अच्छा, मणिपुर बारे एक न्यूज़ आप डिस्कस की थी, फूड बैंक भी शुरू किए हैं मणिपुर ने, मणिपुर ने किए ने फूड बैंक शुरू। इस तो इलावा एक न्यूज़ याद रखना यूपी बारे, यूपी बारे भी एक न्यूज़ आप डिस्कस करते हैं। यूपी ने शुरू किया है पूल टेस्टिंग, फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने शुरू की है पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग शुरू करने वाली फर्स्ट स्टेट किहड़ी बनी है? यूपी। पूल टेस्टिंग का मतलब एक लार्ज नंबर का एक बेसिकली एक सैंपल लिया जाएगा कोविड-19 का, जिस कारण आप कोविड-19 के जोड़े टैसट ने उसको इंक्रीज किया जा सकेगा स्पीड में, ये याद रखना है। पंजाब द्वारा कोवा पंजाब एप्लीकेशन शुरू की गई सी, आप डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा दे विच हैल्ड किया गया सी अटल मजदूर कैंटीन शुरू की गई सी और सूरजकुंड मेला। गुजरात दे विच काफ़ी इवेंट्स हैल्ड किए जा चुके हैं, काफ़ी बार आप डिस्कस कर चुके हैं COP13 बारे, या कैसा या आप डिस्कस कर चुके हैं काइट फैसटिवल बारे। काइट फैसटिवल अहमदाबाद दे विच, COP13 गुजरात दे विच। इस तो इलावा एक इवेंट डिस्कस किए काफ़ी टाइम हो गया गुजरात के अहमदाबाद दे विच मोंटेरा स्टेडियम, मोंटेरा स्टेडियम नूं की किया गया? इनोग्रेट किया गया। किन्ना द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे मोंटेरा स्टेडियम या कह सकते हैं वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जोड़ा की है वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। ठीक है जी, मैलबोर्न स्टेडियम हुंदा सी इस तो पहले वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हुंदा सी मैलबोर्न स्टेडियम, जिहड़ा कित्थे सी? आस्ट्रेलिया दे विच। याद रखना। अजली बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।